بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غصہ کرنے سے پرہیز کریں، زیادہ غصہ کرنا ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ پودینے کی خوشبو سونگھ لینے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے گریز کریں، ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار پالک کھایا کرو، بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے بنا کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ کافی ذہین ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کریں، انشاءاللہ برے خواب کبھی نہیں آئیں گے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کو کافی آرام پہنچاتا ہے۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس گھر میں خارش جیسی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ موسم گرما میں کچے پیاز کا استعمال کرنے سے وبائی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر کو جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ قدم ضرور چل لیں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگا لو، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے گھر میں رقم دفن کی تھی، مگر اب وہ جگہ یاد نہیں آتی جہاں وہ رقم دفن کی تھی۔ اگر میں سارے گھر کو کھودوں تو اس میں مشقت ہے، لہٰذا کوئی تدبیر بتائیے کہ وہ جگہ یاد آ جائے۔ امام صاحب رضی اللہ عنہ نے اول تو انکار کیا کہ بھائی یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جس کا میں جواب دوں، لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو فرمایا کہ آج رات نیت کر لو کہ جب تک وہ جگہ یاد نہ آئے اس وقت تک نفلیں ہی پڑھتا رہوں گا، چاہے صبح کیوں نہ ہو جائے۔ امام صاحب نے فرمایا وہ جگہ یاد آ جائے گی، چنانچہ اس نے اسی نیت سے نماز شروع کی۔ دوسری ہی رکعت میں وہ جگہ یاد آ گئی اور اس نے نماز مکمل کر کے رقم نکال لی۔ صبح کو امام صاحب کو واقعہ سنایا تو امام صاحب نے فرمایا یہ شیطان نے بلایا تھا، اور پھر اس کو کب گوارا تھا کہ تم رات بھر نماز ہی پڑھتے، اس لیے اس نے فوراً یاد دلا دیا، مگر تم کو چاہیے تھا کہ یاد آنے کے بعد بھی بطور شکریہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے تمام رات نماز پڑھتے رہتے۔ جو لوگ دودھ میں سونف ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے۔ دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوری چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ حاتم تائی سے پوچھا گیا تو اس سے زیادہ بھی کوئی سخی ہے؟ حاتم تائی نے کہا ہاں، وہ مرد جس کی 2 بھیڑیں تھیں، ایک کو ایک رات میرے لیے ذبح کیا تو میں نے اس کے جگر کے لذیذ ہونے کی تعریف کی۔ دوسرے دن صبح اس نے میرے لیے دوسری بھیڑ کو بھی ذبح کیا اور میرے لیے کباب بنائے۔ پوچھا گیا تو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تو کہا کہ میں نے اس کو 500 بھیڑیں دیں۔ تو سائل نے کہا کہ پھر آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے؟ تو حاتم نے کہا نہیں، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دیا، جبکہ میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال اس کو دیا۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جمائی کو ہرگز نہ روکیں ورنہ دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کسی پریشانی یا مشکل میں سب سے پہلے آپ کی نیند ہی متاثر ہوتی ہے۔ اگر کئی دن تک نیند ٹھیک نہ آئے تو طبیعت بھاری اور بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے۔ کافی پینے سے نیند نہ آنے کی باعث ہونے والی سستی دور ہو جاتی ہے۔ کافی پینا سر درد کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کافی میں پائی جانے والی کیفین خون کی نالیوں کی سوجن کو کم کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ شدت اور کثرت سر درد کو بھی کم کرتی ہے۔
गुलाब का फूल सूंघ लो, डिप्रेशन में कमी आएगी। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप ज्यादा कैलोरीज जला सकते हैं। गाजर का जूस पिया करो, ये कैंसर की बीमारी को खत्म कर देता है। लीची खाना कैंसर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करो, नजर तेज तरीन हो जाएगी। ज्यादा पानी का इस्तेमाल कमर और गुर्दों के दर्द में बेहद मुफीद है। अपनी कुव्वत इरादी पर भरोसा करना सीखें। यही इंसानी शख्सियत की वो अहम खूबी है जिसने आज तक इंसान को दुनिया में पेश आने वाली हर किस्म की तब्दीली और हर किस्म के हालात से निपटना और इन पर काबू पाना सिखाया है। ये कुव्वत अपनी सलाहियतों को जानने से पैदा होती है। कुव्वत इरादी का ये उनसर घबराहट, खौफ और ऐसे ही दीगर अवामल को पहले ही लम्हे में बेअसर बना देता है। खौफ और घबराहट के आलम में पुरसुकून रहें या रहने की कोशिश करें। आपकी घबराहट सूरत हाल को मजीद अबतर बना सकती है। दिल और जहन को पुरसुकून रखें गे तो आप मामलात में उलझने की बजाय इनके हल पर ज्यादा तवज्जो दे सकेंगे। गन्ने का रस बंद पेशाब को खोलता है। घुटनों में दर्द रहता हो तो अंजीर खाएं। खजूर का ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। सुबह के वक्त जल्दी आंख का ना खुलना अल्लाह के नाराज होने की निशानी है और जल्दी आंख का खुल जाना अल्लाह करीम के राजी होने की निशानी है। जो रोटी से कबल पानी पीता है वो बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। शहद के साथ अंजीर खाने से बदन के अंदर ताकत हमेशा रहेगी। एक नेक इखलाक और किरदार का हामिल लेकिन गरीब लड़का इसी के घर इसकी बेटी का रिश्ता लेने गया तो बेटी का बाप बोला, तुम गरीब हो और मेरी बेटी गुर्बत और तकलीफ को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। फिर एक बद इखलाक और बद किरदार लड़का उसी लड़की का रिश्ता लेने गया तो इसका बाप रिश्ता देने के लिए राजी हो गया और इसके बद इखलाक होने के बारे में ये कहा कि अल्लाह इसको हदायत देगा इंशाअल्लाह। तो इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, क्या जो अल्लाह हदायत दे सकता है वो रिस्क नहीं दे सकता, या इन दोनों खुदाओं में कोई फर्क है? जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है इनमें कैंसर का मसला ज्यादा होता है। गुस्सा ज़हनी सेहत पर बुरी तरह असर अंदाज होता है। गुस्से में रहने से याददाश्त में कमी आ जाती है। इंटरनेशनल जर्नल में शाया शुदा तहकीक के मुताबिक गुस्सा करने से दिमागी कुव्वत कमजोर होती है। गुस्सा करने से ज़हनी दबाव की शिकायत होती हैं जिससे सोचने समझने की सलाहियत मुतासर हो जाती है। गुस्सा बेचैनी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का भी सबब बनता है। चर्बी वाला गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। पट्ठों के खिंचाव और दर्द के लिए एक ही बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह की मालिश कर लें। निहार मुंह दही खाने से आपके बदन में नया खून पैदा होने लगेगा। बालों के गिरने का मसला हो तो नीम के पत्तों के पानी से बाल धो लिया करें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जब जिल्द और बालों की आयरन की कमी का सामना हो तो वो खुश्क और ज्यादा नाजुक हो जाते हैं, बल्कि गंजेपन का खतरा भी बढ़ जाता है या बाल तेजी से गिरने लगते हैं। आयरन कम होने से प्रोटीन की एक किस्म की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में जिस्म जिल्द और बालों की बजाय आम अज़ा को तरजीह देता है। आयरन की कमी पूरा करने के लिए अपनी खुराक में पालक, धनिया और सब्जियों का सलाद शामिल करें। किशमिश को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इन्हें शहद के साथ खाएं। शहद में भी आयरन की अच्छी मिकदार पाई जाती है। एक गिलास दूध में 3 खजूरें उबाल कर पीने से मर्दाना कमजोरी और जिस्मानी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। जो औरतें दोपहर के वक्त ज्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए दोपहर के वक्त बस कुछ देर आराम करना चाहिए। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह किसी मोमिन की कोई नेकी जाया नहीं करता। इसको इस यानी नेकी के बदले में दुनिया में अता किया जाता है और इसके बदले में उसे आखिरत में जज़ा दी जाएगी, और काफर को इसकी दुनिया में अल्लाह के लिए की गई नेकियों के बदले में खिलाया जाता है, हत्ता कि जब वो आखिरत को पहुंचेगा तो इसकी कोई नेकी नहीं होगी जिसकी उसे जज़ा दी जाए। अगर जोड़ों में दर्द रहता हो तो देसी घी को गर्म करके चाट लें, इससे जोड़ों के दर्द में आराम आ जाएगा।
गुड़ की धुनी लेने से बंद नाक जल्दी खुल जाएगा। रोजाना नहाने वाला बंदा कभी भी खारिश जैसी बीमारी का शिकार नहीं होता। अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बाकायदगी से बढ़ने लगे तो बैंगन की सब्जी खाया करें। काली मिर्च खाने से गला ठीक रहता है और नज़र की कमजोरी कभी नहीं होती। बेकायदगी से नाश्ता छोड़ने को दायमी बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे से मुंसलिक किया गया है। मुताले से मालूम हुआ है कि इस आदत से मोटापे, ज़ियाबितस टाइप 2 और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नाकस ग़िज़ाई आदत, मेटाबॉलिज्म की कमी और ग़िज़ाई अज्जा की कमी के मजमूई असरात वक्त के साथ इन संगीन मसाइल का सबब बन सकते हैं। सोने से पहले नीम गर्म पानी का 1 गिलास पीकर सो जाओ, गुर्दों की सफाई हो जाती है। दही में खीरा डालकर खा लेने से आपका रंग खूबसूरत हो जाएगा। कच्चा दूध पीने वाले इंसान का रंग कभी सांवला नहीं होगा। अगर सुबह के वक्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पी लें तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा और डिप्रेशन से निजात मिलेगी। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो वो मकई का आटा इस्तेमाल करें, नज़र तेज हो जाएगी। सब्ज प्याज के पत्ते बवासीर के मरीज को निहार मुंह खिलाओ, बवासीर खत्म हो जाएगी। अगर जिल्द की खारिश का मसला हो तो मूंगफली खाने से परहेज करें, वरना मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे रोने से मसले हल नहीं होते, बल्कि हमने सब्र करना होता है। याद रखिए, सख्ती झेलना हमेशा कुछ वक्त की बात होती है। सरसों के फूल की खुशबू सूंघ लिया करो, दिमाग की रगें तेज हो जाती हैं। एक दुकानदार से पूछा गया कि किस तरह इस छोटी और बंद गली में अपनी रोजी रोटी कमा लेते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं जिस सुराख में भी छुप जाऊं, मौत का फरिश्ता मुझे ढूंढ निकालेगा। तो ये किस तरह मुमकिन है कि रिस्क वाला फरिश्ता मुझे न ढूंढ सके। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। सवाल, पाकिस्तान में कितने फीसद लोग खून देते हैं? जवाब, पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2% लोग रेगुलर खून देते हैं। चंद अफराद इमरजेंसी में भी खून देते हैं। नहाने के बाद फौरी सुरमा लगाने से आंखों की बिनाई कम होने का खदशा होता है। पानी ज्यादा पीने वाले इंसान की जवानी ज्यादा देर तक कायम रहती है। रोज दूध पीने वाले बंदे को काम में थकावट नहीं होती और जिस्म में ताकत हमेशा कायम रहती है। हर रोज बिला नागा पुरानी खारिश, दर्द या किसी भी जिल्द की बीमारी पर नमक या बेकिंग सोडा मलें, इंशाल्लाह जल्दी शफा मिलेगी। आम के सब्ज पत्ते चंद दिन कुछ देर के लिए चबाने से दांत हिलना, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। दूसरे के भेद को महफूज रखना अमानत और उसे मशहूर कर देना खयानत है और मशकूक चीजों से बचना दयानत है। जब मौत करीब आती है तो ये चीजें जाहिर होने लगती हैं, तबीयत बेवकूफ बन जाती है, शिफा के सारे असबाब मौत के सबब बन जाते हैं, वो अपना नफा पहचानने में अपना असर खो देती है। पाँव का दर्द न जा रहा हो तो पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश कर लिया करो, दर्द जैसा भी हो दूर हो जाएगा। दमा की बीमारी हो तो शहद में दालचीनी के दाने मिलाकर खाओ, दमा की बीमारी खत्म हो जाएगी। अपना सफर हमेशा जारी रखें, खूबसूरत मंजिलों के रास्ते अक्सर दुश्वार होते हैं। होंठों को गुलाबी करने के लिए देसी मोम में नींबू का रस मिलाकर होंठों पर लगाएं। रोगने बादाम और शहद मिलाकर रोजाना होंठों पर लगाएं। दूध की बलाई में चंद कतरे नींबू का रस डालकर होंठों पर लगाएं। शहद और जैतून को मिक्स करके होंठों पर लगाएं। अरके गुलाब में ग्लिसरीन मिलाकर दिन में 2 मरतबा होंठों पर लगाएं। ताज़ा दूध की झाग होंठों पर मलें। उमर बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे मुतालिक फकर से नहीं डरता, लेकिन मुझे तुम्हारे मुतालिक इस बात का अंदेशा है कि दुनिया तुम पर फराग कर दी जाएगी जैसे तुमसे पहले लोगों पर फराग की गई थी। फिर तुम इसके मुतालिक वैसे ही रगबत रखोगे जैसे उन्होंने इसके मुतालिक रगबत रखी, और वो तुम्हें हलाक कर देगी जैसे इसने उन्हें हलाक कर दिया। अंगूर का रस निकाल कर रोजाना रात को होंठों पर लगाएं। होंठ गुलाबी और नर्म और मुलायम हो जाएंगे।
अगर किसी के पेट में कीड़े हों तो सोते वक्त एक सेब मरीज को खिला दें और बाद में पानी न पीने दें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेट के तमाम कीड़े हलाक हो जाएंगे। सब्जी में तोरी बेतहाशा ताकत देती है। अगर आप अपनी चाय में नीम के पत्तों का इस्तेमाल करोगे तो खून साफ हो जाएगा और कैंसर जैसी बीमारी कभी न होगी। बंद गोभी ज्यादा खाने से जिस्म से हर किस्म की खारिश दूर होगी, सर की खुश्की खत्म होगी, जिल्द की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। खून निकलने की जगह पर चाय की पत्ती डालकर थोड़ी देर दबा कर रखें, खून निकलना बंद हो जाएगा। खुश्क होने पर पत्ती खुद ही उतर जाएगी और चोट के निशान भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। इस्तग़फ़ार की तस्बीह रोजाना पढ़ा करें, इंशाअल्लाह हर मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।